منبر پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما بارکات محترم علماء ملت اسلامیہ محمد قوم و ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام من كان ناظر التکبیر ناظر رسالت خلیفہ حضور اشرف الصوفیہ خلیفہ حضور تاج ملت خلیفہ علامہ مولانا محمد علی حسین صاحب سے کہا داری ناظر تکبیر ناظر رسالت یا آخرات سکیت کی کتاب کے عالم نظر کبیرہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار کہتے ہیں تیرے دل اے بہار کہتے ہیں ہائے باطل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار کہتے ہیں، ہائے باطل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار کہتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رسا تجھ سے کتے ہزار کہتے ہیں۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید ابرار و اختیار شہنشاہی دیوتار کائنات کے اولین فصل بہار صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شان کائنات کے بدر الدجا روح کتاب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر بابا سے بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ حضرات، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے منبر نور پر آپ کے بلائے ہوئے مہمان خطیب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میرے پاس یا جیسا پروگرام کا ترتیب ہوگا پھر آپ جا کے سماعت کرنا ہے اور حضرت کی ایک اچھوٹی گفتگو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ میں آپ کے لیے نیا ہوں، آپ میرے لیے نئے ہیں۔ اس پورے مجمع میں مجھے صرف ایک آدمی جانتا ہے اور وہ آپ کے خطیب و امام ہمارے ساتھی محترم بڑے بھائی حضرت علامہ و مولانا حضرت حافظ بخاری سید ابو ذر صاحب قبلہ، جو مجھے جانتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں۔ ساتھی سب میرے لیے نئے ہیں، میں آپ کے لیے نیا ہوں۔ نہ میں آپ کا ذہن جانتا ہوں کہ آپ کیسی تکلیف سننا پسند کرتے ہیں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کیسا بولتا ہوں۔ بہرحال حضرت کی محبت کی اور آپ لوگوں کی محبت کی زنجیر میں قید ہو کر کے آپ کی دیار محبت تک میں حاضر خدمت آیا ہوں۔ میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، میرا اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم توبہ کرو اللہ کے لیے، توبہ کرو اللہ کے لیے، ایسی توبہ جو تمہاری توبہ اگلوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ حضرات، اللہ رب العزت کا انداز بیان ذرا قرآن میں دیکھیں۔ میرے رب نے اس کلام کو جو اتارا زمین کے اوپر
तो रब ने जो गुफ्तगू की, ये बंदों से, मुसलमान बंदों से गुफ्तगू की, और मेरे रब ने डायरेक्ट ईमान वालों से मुखातिब होकर कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम तौबा करो अल्लाह के लिए, ऐसी तौबा जो तुम्हारी तौबा की मिसाल बन जाए। लोगों, आज जरा हम अपने आप को झांक के देखें, आज हम अपने समाज का जायजा लें, आज हम अपने मुआशरे का जायजा लें। मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुसलमान जरा बता के सही, आज हमारी कौम के अंदर, आज हमारे कौम के लोगों के अंदर वो कौन ऐसा गुनाह है जो मुसलमान नहीं कर रहा, वो कौन ऐसी गलती है जो मुसलमान के अंदर नहीं पाई जाती। मेरी कौम के लोगों को बहुत अफसोस होता है आपके इन हालात को देखकर। आप जिस गुनाह के अड्डे पे देखे मुसलमान खड़ा नजर आता है, आप मुसलमान जिना के मैदान में शराब के अड्डों पे देखो तो मुसलमान नजर आता है, जुआ के अड्डों पे देखो तो मुसलमान नजर आता है, जिना के अड्डों पे देखो तो मुसलमान नजर आता है। आज मुसलमान झूठ के मैदान पे उतर आया है, आज मुसलमान एक दूसरे को धोखा देने पे उतर आया है, आज मुसलमान तरह तरह का गुनाह करते हैं, किसी की तरक्की हमसे बर्दाश्त नहीं होती, किसी की बेटी के रिश्ते लगते हमसे बर्दाश्त नहीं किए जाते। मेरी कौम के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी के गुलामों, जरा सीने पे हाथ रखकर फैसला करना और ईमान से फैसला करके बताना, क्या तेरे नबी ने यही दर्द तुझे दिया था, क्या तेरे नबी ने यही पैगाम तुझे दिया था? और जरा अपने आप का जरा मुहासबा करके तो बताओ, अपनी हैसियत को तो समझो। आज हम जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, आप तरह तरह के गुनाह हम करते हैं। क्या मेरे रब ने हमें इसीलिए पैदा किया था कि शराब के अड्डे हमसे आबाद हो, ज़िना के अड्डे हमसे आबाद हो, सलीमा हाल हमसे आबाद हो, सूदखोरी हमसे आबाद हो, आज हर तरह का गुनाह हम करते हैं। ऐ मेरे नबी के गुलामों, याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दुनिया में गुनाह करके जहन्नमी बनने के लिए पैदा नहीं किया था, बल्कि मेरे खुदा ने आपको दुनिया में जीत जी नबी का सच्चा गुलाम बनकर जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह ने आपके लिए जन्नत बनाया था कि मेरा बंदा मेरे महबूब का कलमा पढ़ेगा, मेरे महबूब के काम करेगा, उनकी सुन्नतों पे अमल करेगा। एक मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला सच्चा मुसलमान बनकर जब दुनिया छोड़ के आएगा तो उसकी कब्र भी जन्नत बना दूंगा, आखिरत भी उसकी जन्नत होगी। नारे 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 तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था कि हम अपने नबी का कलमा पढ़ के अपने नबी की सीरत पे अमल करते, अपने नबी की जिंदगी पे अमल करते, उनके उसमें हसना को अपनाते। लेकिन लोगों, आज हमारी हालत इस कदर बिगड़ चुकी है, आज हमारे कौम के हालात इतने खराब हो चुके हैं। ऐ नबी के गुलामों, याद रखना, तुम उस मुस्तफा करीम की उम्मत हो, अल्लाह ने उस यार की उम्मत पे तुझे पैदा किया है। आओ जरा अपने नबी की जिंदगी सुनो। ऐ शैतान मुस्तफा कमेटी वालों, सुनो सुनो, तुम रहमत आलम कॉन्फ्रेंस करते हो, अल्लाह तुम्हारी तकदीर को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे इस कार्य खैर को अपनी बारगाह में कबूल करवाए। लेकिन मेरे नबी के गुलामों, कभी अपने नबी की सीरत भी पढ़ लिया करो, कभी अपने नबी की जिंदगी भी पढ़ लिया करो। हमें आपको पता है, आज हम अपनी जिंदगी गुनाहों में रह के गुजारते हैं, आज हमारे अमल इस कदर खराब हो गए कि ना हम कब्र में नबी को मुंह दिखा सकते, ना कयामत के दिन अपने रब की बारगाह में खड़े होकर अपनी जिंदगी का हिसाब देने के काबिल है। इसकी वजह क्या है? लोगों, कोई गुनाह हमसे नहीं छूटा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर चाहते हो कि तेरी कब्र में जो तेरे नबी आए, जो रहमत वाले नबी का सामना तुझे कब्र में करना पड़े, तो शर्म की वजह से मुंह छुपाने की जरूरत न पड़े। दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजार जा कि तेरे नबी कब्र में फरिश्तों से कहे, और फरिश्तों से ये कब्र में आने वाला कोई गुनहगार नहीं, मेरा सच्चा गुलाम कब्र में आया है। सुभान अल्लाह। ऐसे अमल कर जाओ कि कब्र में नबी शान से कहे फरिश्तों से, फरिश्तों देख ये आने वाला कोई और नहीं आया है, मेरा सच्चा गुलाम आया है। जब बिस्मिल्लाह मस्जिद की चार दीवारी के अंदर ये
अमाल अच्छे करने की जरूरत है। लोगों, और अपने नबी की बात सुनाता हूँ, वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं। हम आप उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी को अल्लाह ने तमाम नबियों का सरदार बनाया। वो मेरा नबी जो कुल कायनात का मालिक और मुख्तार है। हमें हमको आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कलमा अता किया है जो कलमा पिछले नबी पढ़ते रहे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक तमाम नबियों ने जिस कलमा को पढ़ा है, जिस नबी का कलमा पढ़ा है, अल्लाह ने उसी नबी का कलमा हमें आपको अता किया। उसी नबी की उम्मत में हमें आपको हमने पैदा किया। लोगों, आपको बताऊं, आज हम गुनाह करते हैं, हम क्या सोचते, मेरे नबी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचती है? क्या समझते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते, क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं होती? जब मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला उम्मती जरा क्या टोक पे जाता है, मेरे नबी को तकलीफ नहीं होती? नबी का कलमा पढ़ने वाला शराब खानों की तरफ बढ़ता है, नबी को तकलीफ नहीं होती? मेरे नबी का दिल टूटता है। लोगों, आप तो अपने नबी की जिंदगी भूल बैठे हो, लेकिन आपको बताओ मेरा नबी हमसे कितना प्यार करने वाला है। वो मुस्तफा करीम है। उम्मत के गम में पूरी रात नबी रोते थे। कभी खाए हिरा में सर सस्ते में है, अल्लाह की बारगाह में एक ही दुआ है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह, मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा, मालिक मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा। खाए सौर में नबी को हम याद आए हैं, परवरदिगार की बारगाह में तेरा नबी दुआ करता है, ए अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार होगी, मालिक मेरी उम्मत की कोशिश करना, अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी खताकार होगी, मेरी उम्मत की कोशिश करना। जहाँ जिस नबी ने रातों को रो देकर तेरी कोशिश की दुआ की है, जिस नबी ने सजदे में सर झुकाकर तेरी मग़फ़िरत की दुआ की है, आज उस नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो, उस नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो, हम तरह का पूरा करते उस नबी को नाराज करते हो। और नबी के कलमा पढ़ने वालों, आओ तुझे बताता हूँ, वो मेरा मुस्तफा करीम है, वो ताइफ का बाजार है, मक्का की गंगा है। अभी इब्तिदा इस्लाम का वक्त है, नबी के आखिर समा मुस्तफा करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका दिन भर दीन की तबलीग करते हैं। काफिरों के सामने जाकर के एक खुदा शरीफ का पैगाम पहुंचाते, लोगों से कहते हैं, लोगों छोड़ दो इन बुतों की पूजा करना, ये बुत तेरे खुदा नहीं है। ऐ लोगों, छोड़ दो चांद सूरज की पूजा करना, ये चांद सूरज तेरा खुदा नहीं है। आओ फर्क करो, सब की बारगाह में आओ। जिस रब ने चांद सूरज को पैदा किया है, जिस रब ने पैगंबर को पैदा किया है, जिस रब ने हुस्न को पैदा किया है, जिस रब ने शम्स कमर को पैदा किया है, जिस रब ने लोहा कलम को पैदा किया है, आओ उस खुदा की बारगाह में जिसने पहाड़ और समंदर और दरिया को पैदा किया है, उस खुदा की बारगाह में सर झुकाओ। कोई नबी को गाली ना देते हैं, किसी ने नबी के जितने अतर पे कंकरियां मारी है, किसी ने नबी के जितने नबी के चलने वाले रास्ते पे कांटे बिछाए हैं। कोई जालिम इस कदर जालिम बन चुके मक्का की गलियों में, जब नबी खुदा की दावत लोगों को देते रहे, दीन का प्रचार लोगों तक करते रहे, ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे नबी के जिस्म पे ताइफ के बाजार में पत्थर मारा करते थे। नबी के पैर मुबारक फटने के बाद जब खून का गुब्बारा निकल पड़ा है, पैरों में तकलीफ होती है। एक गुनाह करने वालों की फाल को सुनना, ये मेरे नबी ने ताइफ में पत्थर हमारे लिए खाए हैं, नबी के रास्ते पे कांटे हमारी वजह से बिछाए गए, नबी के जिस्म मुबारक पे तकलीफ है हमारी वजह से दी गई है। जरा देखो तो सही, ताइफ का बाजार है, नबी के जिस्म मुबारक पे पत्थर मार के काफिरों ने नबी को खून से रुहान कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद मेरे मुस्तफा करीम है, जब दीन की तकलीफ से वापस आते हैं, खाप की तारीखी आई है, गर्मियों का मौसम है, दिन भर में तकलीफ मेरे नबी ने उठाया, रात का आखिर पहर आया है। हजरत अम्मी आयशा फरमाती है, मेरे नबी की सबसे छोटी बीवी हजरत अम्मी आयशा आप अर्ज करती है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मैंने रात के पहर में अपने हुजरे में नहीं पाया तो मैंने सोचा नबी को देखो तो मुस्तफा है कहाँ, मेरे आका कहाँ तशरीफ ले गए हैं। अम्मी आयशा फरमाती है, जब मैंने देखा, मैं घर से बाहर निकली तो मैं क्या देखी, एक अलग कमरे में नबी मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में झुका के नबी रो रहे हैं। मेरे आका रो रो के दुआ करते, ए अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार होगी,
मालिक मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार होगी, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। अम्मी आयशा कहती है, जब मैं आपसे पूछता हूँ आप बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं तो कितना रोते हैं? बहुत ज्यादा गमगीन होने वाला बाप अगर किसी बाप का जवान बेटा भी मर जाएगा, वो पूरा बाप रोएगा तो कितना रोएगा? आंखों से आंसू निकलेंगे, गाड़ी भीगेगी, बहुत ज्यादा रोएगा ना, रुमाल पूरा गीला हो जाएगा। लेकिन लोगों, मेरे नबी जो होते थे, अम्मी आयशा फरमाती है, मैंने देखा नबी की आंखों से निकले हुए आंसू मुसल्ले को दिखाकर दरवाजे के नीचे से बैठ करके बाहर आ रहे थे। यार जरा बता तो सही, ये नबी का प्यार नहीं तो और क्या था? ये हमसे नबी की मोहब्बत नहीं तो और क्या थी? पूरा दिन दुश्मनों ने तकलीफ दी, काफिरों ने पत्थर मारा, रात में जहां सुकून की नींद दुनिया वाले लेते हैं, आप रात की तारीकियों में गरम गरम बिस्तरों पर लेट के पूरा करते हो। लेकिन वो तेरा नबी तेरी मोहब्बत में तू उधर जिस्म पे तकलीफ है ना, इधर नबी मुसल्ला बिछाकर सर सस्ते में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मालिक उम्मत बड़ी गुनहगार होगी, अल्लाह उम्मत बड़ी खताकार होगी, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मालिक उम्मत की बख्शिश फरमा, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। यार बता तो सही, इतना प्यार करने वाला नबी अल्लाह ने हमें आपको अता किया है, आज गुनाह करके उस नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो। बताओ क़यामत के दिन कौन सा चेहरा अपने नबी को दिखाओगे? नारे तकबीर, नबी ने हम उम्मत पर नाज किया था, आज वही उम्मत बहक गई, आज ये उम्मत बहक गई। जिस नबी के, जिस उम्मत के नबी ने नाज किया था, आज इस उम्मत की हालत क्या है? लोगों, अपने आवाज सुधारो, अपने हालात सुधारो। नबी ने बड़ी मोहब्बत आपसे की है। बस आखिरी बात, 2 मिनट पीछे लो। हज़रात, मेराज की रात है ना, मेराज की रात, शब मेराज। लोगों, मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखाता हूं, वरना मैं भी बड़े मैदान का खिलाड़ी की सृष्टि है। मेराजुल कादरी नाम से फेसबुक में आईडी बनी, उसमें आप देख सकते हैं। मैं आपको एक झलक दिखाता हूं, सुने कितना प्यार नबी हमसे करते हैं। हम अपने घर की शादी ब्याह में, अपने घर की शादी ब्याह में नबी को भूल जाते हैं, नबी की सुन्नत, नबी की सास की भूल जाते हैं। मुसलमानों की शादियों में हंसते थे न, कैसे कैसे खुराफात हो रहे हैं। लेकिन लोग आओ, अपने नबी का प्यार अपने से देखो जरा। शब मेराज है, नबी गए मेराज को, अल्लाह से मिले, बातें हुई, तमाम चीजों को देखा, वापस आए, मेरे नबी की लाडली शहजादी, नफ्से जिगर नबी की, सज्जदाए कायनात, मखदूमाए कायनात, मलिकाए फिरदौस बरी, हजरत सज्जदा फातिमा ज़हरा, नबी की छोटी बेटी, बड़ी लाडली थी ना फातिमा, पापा के पास आती है, साल में अदब तय करती है, नबी की बारगाह में नबी की बेटी बैठी है। बाबा, बाबा, आपकी बेटी आपकी बारगाह में कुछ मांगने आई है, देंगे? नबी ने फरमाया, बेटी मांगना क्या मांगती है? तेरा बाबा देगा। फातिमा अर्ज़ करती, बाबा मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। आप शब मेराज अल्लाह की बारगाह में गए थे ना, आपके और रब के बीच में बहुत सी बातें हुई, लेकिन मैं उसमें से कुछ एक चीज जानना चाहती हूँ। मुझे कुछ नसीहत फरमाएं, मुझे कुछ बताएं कि आपने अपने रब की बारगाह में कौन सी बात की, अपने रब से क्या कहा? तो नबी फरमाते, बेटी मैं तुझे सारी बातें या बहुत बातें तो नहीं बता सकता, एक बात बताता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा जब मैं अल्लाह की बारगाह में पहुंचा ना, तो मेरे रब ने मुझसे पूछा, महबूब जब अल्लाह और नबी के बीच में सारी बातें हो गई, अब रब ने फरमाया, महबूब मांगे क्या मांगते हैं? महबूब मांगे क्या मांगते हैं? जो मांगेंगे दिया जाएगा। नबी फरमाते, फातिमा अल्लाह ने 70,000 मरतबे मुझसे कहा, महबूब
मांगे क्या मांगते हैं 70,000 मरतबे। ओ नबी के गुलामों जरा देखो अपने नबी का प्यार देखो। नबी फरमाते बेटी मैंने 70,000 मरतबे के जवाब दे अल्लाह को 70,000 मरतबे एक ही जवाब दिया, ए अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश मुझे चाहिए। ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, बिस्मिल्लाह मस्जिद की सहन में बैठ कर नबी का जिक्र मनाने वालों सुनो, इतना प्यार तेरा नबी तुझसे करता है। नबी फरमाते फातिमा मैंने अपने रब से कहा मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे कह दे कयामत का दिन होगा, मेरी गुनहगार उम्मत होगी, मैं शफाअत करता जाऊंगा, तू मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश करता जाएगा। मेरी गुनहगार उम्मत होगी, मालिक मैं तेरी बारगाह में दुआ करूंगा, तू उसे माफ करता जाएगा। सुभान अल्लाह। यार इतना प्यार मेरे नबी कुरान आपसे करते हैं। लोगों आपसे बस यही पूछा मेरी है, जिंदगी अब तक आपकी जैसी गुजरी गुजर गई, बस आज इस महफिल से उठने से पहले ये सच्ची तौबा करके उठना मालिक अब तक मैंने बहुत से गुनाह किए, नमाज़ें हमने छोड़ी है, रोज़े हमने छोड़े हैं, परवरदिगार ज़िना हमने किए हैं, चाहे जैसे गुनाह आपने किए हो, मेरा अल्लाह इतना बड़ा करीम है, वो फरमाता बंदे अगर तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो तो मेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर, मैं तेरे सारे गुनाहों को ऐसे मिटा दूंगा जैसा कि तूने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। तो इतना बड़ा करीम है। अल्लाह फरमाता है लोगों तौबा करो तुम मेरे लिए, और ऐसी तौबा कि तुम्हारी तौबा तुम्हारे अगलों के लिए नसीहत बन जाए। हज़रात मेरे आका फरमाते हैं तारीफ मेरा ज़ब्बी कमर का ज़बर हो, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं हो। आप जितने बड़े गुनहगार, जितने पाप आपने किए हो, कोई बात नहीं, आपके गुनाह बेशक बहुत बड़े होंगे, लेकिन इतना याद रखना अल्लाह की रहमत से बड़ा आपका गुनाह नहीं हो सकता। मेरा अल्लाह अपनी रहमत से माफ करने वाला है, इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है गुनाहों से सच्ची तौबा करें, सच्चा मुसलमान बनकर के जिंदगी गुजारें, नेक बने, मस्जिदों को आबाद करें, मदारिस को आबाद करें, उलमा से जुड़े, आप अपने अमाल अच्छे करें। अल्लाह ताला आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।